chapter, we will see the another problem. In today's session, we are going to observe the new situation in which the forfeiture of the shares, how it is the procedure made, that we are going to see in the detail. Actually, what is the forfeiture, that we will see firstly, because we should know what is exactly the meaning of forfeiture. Then only we can understand the thing that about your journal entries, how it is made in the books of accounts. First of all, listen carefully that when the shareholder or the applicant is unable to pay the amount of shares, then it is called as that he will not pay, he is unable to pay, and then the treatment that company going to make about his shares is called as forfeiture of shares. Actually, thing is that the forfeiture of shares is not an immediate action when somebody or the person is fails to pay to give the amount of installment of allotment money, first call money or second call money or final call. It happens when the secretary gives a duly reminder to that particular person. After all that, also, if it is not happening that he is paying the amount of that particular shares, then only the action is taken of forfeiture. So, in case of forfeiture, they must give the intimation to the shareholder, to the investor, that we are going to take this action if you are failed to pay that particular amount of installment. So here we are going to write the meaning of forfeiture firstly. Write down forfeiture. Write down forfeiture. All are writing. Given chat box. What is your yes? Forfeiture of shares. Write down spelling FORFEITURE. FORFEITURE. Okay, I'm writing for feature. Okay, it's in task box. Forfeiture of shares means when shareholder is unable to make the payment of the call made by the company made by the company and after duly notices sent by the secretary sent by the secretary sent by the secretary, then only if shareholder refuses to pay, if shareholder refuses to pay the amount of call, then it is called as then it is called as the action, then it is called as forfeiture of shares. It is an action. It is an action taken by
The company, when when the call amount has not paid, the call amount has not paid after duly notices, after duly notices to the shareholder, to the shareholder. Now here is some of the more explanation part that I'm showing on PPT. See, forfeiture of shares. Can you see the screen? Okay, as in that you can see. Forfeiture of shares if the shareholders fail to pay allotment or call money or both. दोनों अगर पे कर नहीं सका या फिर allotment money पे नहीं कर सका, the company send reminder to the shareholder to make the payment of calls in arrears. अभी ये reminder कौन भेजता है अभी मैंने बताया, that is the secret. If shareholder does not respond to reminders and fails to pay money, then directors can forfeit his shares. मतलब ये अधिकार किसको दिया है? डायरेक्टर. जैसे आपको मालूम है कि अलॉटमेंट का अधिकार किसे दिया है? शेयर होल्डर को दिया है. तो सेम टाइप हियर आल्सो directors is directors is also held responsible for the forfeiture of shares, and he will follow the rules and regulation of what? Articles of association of company. When shares are forfeited, the share capital is debited with the amount of called up to the date of forfeiture in respect of shares forfeited, and credit will be given to share forfeiture account with the amount already received and the respective unpaid calls amount. अभी ये क्या डिटेल में इसका एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि फोर फीचर के एंट्री अगर करना है तो फोर फीचर की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये पहले बताया कि क्या व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द, यहाँ पे क्वामा चाहिए था, द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड. कौन सा कैपिटल डेबिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट. क्योंकि वो जो कैपिटल हमने रिसीव किया है टिल द डेट और हमने रेज किया था, अलॉटमेंट मनी उसका मिला, एप्लीकेशन मनी मिला, सपोज टू बी, यानी फर्स्ट कॉल को उसने लैप्स कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट के लिए. So at that time we have to remove that capital which has been created and credited by us in the journal entries, so that share capital का वो जो face value है, suppose to be उस व्यक्ति ने 100 shares purchase किए थे 10 रुपीज के, ठीक है. सो 100 into 10 1000 रुपीज उसने उसका वो शेयर कैपिटल ड्यू अमाउंट था, टोटल ड्यू अमाउंट था. उसमें से आउट ऑफ सपोज टू बी उसने 3 रुपीज अलॉट एप्लीकेशन मनी भरा है, सपोज टू बी 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी भरा है, 7 रुपीज का रिमेनिंग कॉल अभी तक भरा नहीं है. मतलब 3 into 100 300 रुपीज इतना उसने अमाउंट बस एप्लीकेशन का भरा है, 700 रुपीज आज तक भरा नहीं है. जब उसको हमने अलॉटमेंट करना डिसाइड किया और उसे मनी पे करने के लिए बोल दिया, he hasn't paid that amount, so further cost देने का कोई मतलब ही नहीं है. तो उसने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कंपनी क्या करता है कि the company sends him the letter and the shares are forfeited. तो उस टाइम पे जो एंट्री हम करने वाले, मैं एंट्री के बारे में बात कर रहा था, तो शेयर कैपिटल को डेबिट ₹10 से होगा, फेस वैल्यू से होगा, क्योंकि वो सारा जो 100 शेयर्स का जो कैपिटल है वो टोटली हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव करना है विद द अमाउंट कॉल्ड अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड क्रेडिट विल बी गिवन टू. तो कौन से दो अकाउंट को क्रेडिट होगा ये नीचे बताया है. दो अकाउंट है, एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट है जिस अमाउंट से हम उसका शेयर्स का अमाउंट उसने भरा हुआ अमाउंट फॉरफिट कर रहे, मतलब 300 रुपीज जो कि उसने एप्लीकेशन के लिए भरा था. सो 300 रुपीज इस फॉरफीचर अकाउंट को जाएंगे. रिमेनिंग 7 रुपीज वैसे भी उसका अनपेड है कॉल्स इन अरियर से, सो दैट विल बी क्रेडिटेड टू अनपेड कॉल्स अकाउंट. और
द रिस्पेक्टिव अनपेड कॉस्ट अकाउंट के अलावा हम उसके क्या बोलेंगे, डायरेक्टली कॉल्स इन अरियर्स ही बोल देंगे, सो दैट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड हियर। ओके, that we will see in the practical problems now. You are able to see the journal entry share capital account to share forfeited account to call scenarios account. This was the entry. इसका ये जो डिटेल पार्ट है बाकी सब मैं बाद में बता दूंगा। आज जो सिचुएशन हम लर्न करने वाले हैं वो इस प्रॉब्लम में। क्विकली राइट डाउन दिस प्रॉब्लम, क्विकली राइट डाउन दिस प्रॉब्लम। Are you able to see? हाँ सर, नहीं आ रहा है आवाज? आवाज आ रही है क्या? अभी देखो, आवाज आ रही है अभी? ओके, रेंज में आ जाओ थोड़ा, सो यू कैन अंडरस्टैंड। अभी ये प्रॉब्लम देख लेना, प्रॉब्लम में रीड भी कर रहा हूँ, तो आपको कोई आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे बस मैसेज कर देना, ठीक है? सी श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बेसिक सिचुएशन ये दूसरा, इससे एडवांस सिचुएशन और आएंगी और ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 1 लाख शेयर्स इशू किए उसने, ठीक है? at premium of ₹2 per share payable as यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बुक्स पे बहुत सारे मिस्टेक है, ये मिस्टेक यहाँ पे है, ₹3 यहाँ पे चाहिए डैश करके ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, राइट डाउन फास्ट, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फटाफट लिखो, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पैराग्राफ करना, नीचे लिखना applications were received for 1,20,000 equity shares and pro rata allotment, write down this word properly, इसका मीनिंग भी आज समझाने वाला हूँ और क्या होता है एक्चुअली प्रो राटा बेसिस वो भी समझाने वाला हूँ। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, मतलब सारे एप्लीकेंट्स को हमने शेयर्स इशू किए हैं, सबको शेयर्स दिए हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स थे उतने सारे लोगों को। पर हमारा शेयर इशू करने का कितना शेयर्स था, इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने थे? 1 लाख शेयर्स इशू करने थे। एप्लीकेशंस 1,20,000, मतलब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन है और वहां पे एक बेसिस हमने यूज किया, दैट इज अ प्रो राटा बेसिस to all the applicants. Okay, the excess application money was adjusted, excess जो अमाउंट था उसको हमने एडजस्ट कर लिया with the allotment, मतलब जो अमाउंट एक्सेस मिला है 1,20,000 into ₹3 पर एप्लीकेशन। ओके, जो 20,000 का एक्सेस अमाउंट मिला है वो हमने एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि हमारा इशू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स का ही होगा, मतलब 1 लाख into 10 इतना ही होगा, ठीक है? एक्सेस अमाउंट जो मिला है दैट इज 20,000 into 3, दैट इज 60,000। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो हम एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट से, मतलब उन लोगों को हमने ये बता दिया कि हम 20,000 शेयर्स कम दे रहे हैं, उतना पूरा जितना आपने मांगा है उतने शेयर्स आपको नहीं दिए जाएंगे। 20,000 के जो शेयर्स है उनकी जो वैल्यू है वो शेयर्स की एप्लीकेशन की वैल्यू जो आपने भर दी ऑलरेडी फॉर अप्लाइंग दैट 20,000 शेयर्स, वी आर नॉट क्रेडिटिंग टू दैट पर्टिकुलर, वी आर नॉट गिविंग दैट 20,000 शेयर्स, बट वी आर एडजस्टिंग योर दिस अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी एज एन अलॉटमेंट मनी, मतलब जो 60,000 रुपीज है 3 into 20,000 दैट विल बी एडजस्टेड इन द अलॉटमेंट। अब ये डिटेल में फिर से बाद में समझाऊंगा, ठीक है? बोर्ड पे दिखा दूंगा ये सारा। हाँ, एक शेयर होल्डर के बारे में बताया, यहाँ पे फॉर फ्यूचर का भी सिचुएशन है। विनीता who was allotted 200 shares failed to pay first and final call.
विनीता ने ये बताया कि 200 शेयर्स का जो उसने परचेस किया था उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये लास्ट वाला कॉल वो नहीं पे कर सकती, एंड हर शेयर्स वेर फॉरफिटेड। पास journal entries in the books of Shraddha Limited and show the balance sheet. Okay. I suppose that you have written all these things. सब लिखा है आपने, मैसेज करो एक बार। पूरा प्रॉब्लम लिखा है, पूरा प्रॉब्लम लिखा है। यस, ओके ओके। आई एम राइटिंग व्हाट यू नीड टू डू। वर्किंग नोट आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पूरा एप्लीकेशंस हमें कितने शेयर्स के लिए मिलना है, एप्लीकेशंस एक्चुअली इशू शेयर कैपिटल क्या है तो पहले इशू शेयर कैपिटल कितना है, पहले तो शेयर्स कितने शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स, ठीक है। ये शेयर्स का वॉल्यूम है, ओके। 1 lakh into 2, okay, sorry, 10 rupees is the face value. So total amount of issued share capital is equal to 1 lakh into 10। कैसे आया? ओके, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, ओके, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ओके, डायरेक्टली लिख दो, इशूड शेयर कैपिटल, issued share capital 1 lakh shares into rupees 10, 1 lakh shares into rupees 10 लिखो आप। तो 1 lakh into 10 टोटल कैपिटल, इशू कैपिटल कितना होगा, रुपीज 10 लाख, रुपीज 10 लाख, ओके। 1 लाख शेयर्स इनटू 10 बता रहा हूं, ओरली बता रहा हूं। तो टोटल कैपिटल कितना हुआ, 10 लाख रुपीस का। इशू शेयर कैपिटल कितना हुआ, 10 लाख, ओके। अभी इसमें से हमारा जो पैसा कलेक्ट करने वाले हैं उसमें प्रीमियम भी चुका है, दैट इज ₹2 प्रीमियम। प्रीमियम अमाउंट हमें कितना मिलने वाला है पर शेयर, दैट इज ₹2, मतलब 1 लाख into 2 that is 2 लाख रुपीस इज द प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। अभी ये जो है प्रीमियम, ये बाद में इसका सोच लेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन, इसका एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी हमें लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है, 1,20,000 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है, 1,20,000 शेयर्स के लिए, ओके। 1,20,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी का अमाउंट क्या है पर शेयर कितना है, एप्लीकेशन मनी ₹3, so multiplied by 3, that is your application money। 1,20,000 into 3 इतना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। लोगों को ये नहीं पता कि 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी लोगों ने अप्लाई किया है, कुछ लोगों ने बाद में भी अप्लाई किया होगा, ऐसा थोड़ी ना पता चलता है कि व्हाट इज द अमाउंट, what the company have received capital, whether the 1 lakh amount is already collected or not, they doesn't know। 1 lakh शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस होगा ही होंगे, ये उनको पता नहीं होता है, सारे अप्लाई करते हैं उनकी मर्जी के अनुसार। सो 1,20,000 शेयर्स मतलब 20,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिला। एक्चुअली एप्लीकेशन मनी कितने रुपीस के लिए मिलना चाहिए था, 1 लाख into 3 के लिए मिलना चाहिए था, दैट इज 3 लाख, पर कितना मिला, 3 12 36, दैट इज
3,60,000 कितने रुपीस हमें एज एन एप्लीकेशन मिले। करेक्ट, 3,60,000 बराबर 3,60,000 हमें मिले, बट अमाउंट वी हैव रिसीव्ड 3,60,000। तो मिलना कितना चाहिए था, ये फिर से बात बता रहा हूं कि 1 लाख का इशू हमारा है, 1 लाख शेयर्स का इशू हमारा है, 1,20,000 का नहीं है। फिर भी 20,000 एक्सेस मनी मिला है। तो ये जो 3,60,000 है, इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। आप ये वर्किंग नोट कर लो मेरे साथ। इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो 3 लाख रुपीस हम एज एन एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो 60,000 है वो अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करना है। 60,000 जो एक्सेस अमाउंट ऑन ₹20 ऑन 20,000 शेयर जो एक्स्ट्रा मिला है, 20,000 शेयर्स into 3 rupees, ये जो एक्स्ट्रा मिला है 60,000, that we will adjust against what allotment, and this application money 3 lakh rupees that will be transferred as application money only in the share capital. तो एंट्री एज इट इज होगा। 3,60,000 मिले तो बैंक अकाउंट को 3,60,000 ही डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक एप्लीकेशन 3 लाख रिसीव होना चाहिए तो बैंक अकाउंट को 3 लाख ही डालो, ऐसा नहीं। जैसा ट्रांजैक्शन हुआ है वैसे ही हमें ये नोटिफाई करना है, नोटिस करना है और अकाउंटिंग स्टेटमेंट उसका देना है। सो 60,000 is adjusted in the further call, next premium, next installment, that is known as allotment। ठीक है, तो ये आपका पहला एडजस्टमेंट था कि वर्किंग नोट था जो आपको करना है। इसके बाद की चीजें जो है वो आपको फटाफट समझ में आएगी। जैसे जैसे आप जर्नल एंट्रीज करोगे, जर्नल एंट्रीज में पहली एंट्री होती है कि बैंक अकाउंट debit to equity share application account। ठीक है, टोटल कितना अमाउंट मिला है उतना ही डेबिट और क्रेडिट होगा, 3,60,000 and 3,60,000। Write down this entry and write down narration also, being application money received for 1,20,000 shares। कितने शेयर्स के लिए मिला है? 1,20,000। as it is will write down being application money received for 1,20,000 shares at ₹3 per share, at ₹3 per share। नेक्स्ट सेकंड एंट्री जो होगा उसमें वो जो अलॉटमेंट को एडजस्ट करना है वो एंट्री होगा। अभी आप ये सोचो कि मैं हर बार ये आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन का जो अकाउंट ओपन हुआ है वो हमें क्लोज करना है, बराबर? तो ये क्लोज करने के लिए उसको जितना क्रेडिट मिला है उतना ही डेबिट मिलना चाहिए सेकंड एंट्री में। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू। अभी यहाँ पे डेबिट मिल गया, इस डेबिट को, इस क्रेडिट को ये डेबिट मिल गया, सो ऑटोमेटिकली इट इज अ नलिफाइड इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। और ये हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और हमें ये बताया गया कि ये जो अमाउंट है टोटल 3,60,000 का, ये पूरा एक्सेप्टेड नहीं है, इसमें से 3 लाख ही एक्सेप्टेड है एज एन एप्लीकेशन। तो हमें इसका जो 60,000 का जो पार्ट है दैट वी विल ट्रांसफर टू द अलॉटमेंट अकाउंट। सो कैपिटल को कितना ट्रांसफर होगा? 3 lakh rupees, and the share जो एक्स्ट्रा अमाउंट था that is allotment, equity share allotment अकाउंट, उसको जो ट्रांसफर हमें करना था that is 60,000।
जो एक्सेस एप्लीकेशन के लिए अमाउंट मिला है दैट विल बी क्रेडिटेड टू द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब जब अलॉटमेंट के लिए हम कॉल करेंगे उसमें से 60,000 ऑलरेडी रिसीव हुए हैं, वो बार बार फिर से उस एंट्री में रिसीव नहीं होंगे। फिर भी हमें जब अलॉटमेंट ड्यू दिखाना है तो वो पूरे अमाउंट से दिखाना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नाउ? See in your problem the amount of allotment is rupees 5. Amount of allotment is what? Rupees 5. And rupees 5, if it is allotment 5 into 1 lakh, that is 5 lakh rupees. Total कितना है? 5 lakh rupees का है। So 5 lakh rupees का allotment बनी है। तो पहली एंट्री तो हम ड्यू दिखाते हैं, तो इक्विटी शेयर allotment account debit rupees 5 रुपीज 5 lakh। पर अभी इसमें ये सोचना कि out of 5 lakh how much amount will be collected, and before that while showing this due amount what is the byproduct? इसमें एक प्रॉब्लम में एक मिस्टेक, एक स्मॉल मिस्टेक की, उसमें बताया नहीं कि प्रीमियम अमाउंट जो 2 रुपीज प्रीमियम है, जो हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपए है। दैट मींस फेस वैल्यू इज 10, फेस वैल्यू इज 10 प्लस 2 रुपीज द प्रीमियम, तो 12 रुपीज इज द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर्स एक्चुअली। तो 2 रुपए एक्चुअली एडजस्ट कहां पे किया है? किस इंस्टॉलमेंट में किया है? Either it is adjusted in application, allotment or first and final part. It is not specified in the exam. It is not specified in the exam. तो जब ये स्पेसिफाई नहीं किया है तब आपको ये यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, प्रॉब्लम में मेंशन करना चाहिए था, इट इज एक्चुअली इन अलॉटमेंट। तो इसका 2 बाइफर्केशन करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे कि अलॉटमेंट के लिए आप थोड़ा साइड में लिख लेना, दूसरे पेज पे लिख लेना कि अलॉटमेंट का 2 पार्ट, एक फेस वैल्यू वाला पार्ट, एक पार्ट कौन सा? फेस वैल्यू वाला, और दूसरा प्रीमियम का। टोटल इज 3 रुपीज। टोटल फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू का जो फॉर्मिंग पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मिंग व्हिच फेस वैल्यू इज 3 रुपीज। टोटल अलॉटमेंट 2 रुपीज कितने 5 है, उसमें से 3 किसका है? फेस वैल्यू का है, उसमें से प्रीमियम किसका है? 2 रुपीज। एक्चुअली इट मस्ट बी गिवन इन द प्रॉब्लम, इट इज नॉट गिवन। प्रीमियम जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट में इन्वॉल्व है, याद रखना। सो 3 लाख इज द शेयर कैपिटल क्रेडिट and 2 lakh is the share premium credit. Okay, क्योंकि हमें इसे मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 lakh शेयर से करना है। So 3 into 1 lakh, that is 3 lakh shares. 3 lakh amount of that allotment is for share capital account. इसे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल का क्रेडिट, और इसे देंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट का क्रेडिट, इसे देंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट का क्रेडिट। तो यही एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। Equity share capital account ₹3 lakh to equity या फिर शेयर प्रीमियम की शॉर्ट लिख लो, शेयर प्रीमियम अकाउंट ₹2 lakh। Okay, so what is narration? Write down this simple firstly. Share allotment account, share allotment account, equity share allotment account 5 lakh to equity share capital account 3 lakh to equity share premium account 2 lakh. Okay, ये जो 5 lakh allotment पर 5 lakh जो है पर शेयर इट इज ₹5, उसका बाइफर्केशन एक्चुअली देना चाहिए था 3 रुपीज इसके लिए शेयर कैपिटल के लिए, और प्रीमियम का कितना है? ₹2। ओके, नरेशन
being allotment money due, being allotment money due, and credited to allotment account, sorry, premium account, share premium account, as premium amount is involved, as premium amount is involved in the allotment, in the allotment. In the allotment. Now, fourth entry, you know, as allotment हम ड्यू दिखाते हैं और क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट को दिखाते हैं. यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट किया इसलिए प्रीमियम को क्रेडिट दे दिया. That is good. Now, what about receiving the amount of allotment? Allotment का amount हमें अभी रिसीव करना है. That entry you know about it. Bank account debit to equity share allotment account, to equity share allotment account. अभी ये एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment का. ये देख लेना कि allotment को ऑलरेडी शेयर इक्विटी शेयर allotment को ऑलरेडी यहाँ पे 60,000 का क्रेडिट हमने दे दिया है. मतलब 60,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है. 60,000 का अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड है यहाँ पे इस 3,60,000. तो 60,000 अगेन हम रिसीव नहीं करेंगे. तो 60,000 इस 5 लाख से माइनस करना पड़ेगा, 5 लाख से कम करना पड़ेगा. जो 5 लाख रुपीस है ड्यू अमाउंट हमने अलॉटमेंट के लिए दिखाया है, out of that we have received already the 60,000 amount. So it is not required to receive 5 lakh totally now. It is already 60,000 received. Now each will receive only 4,40,000. Out of 5 lakh we will receive how much amount? 4,40,000. इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ. तो क्रेडिट कितने को जाएगा? 4,40,000. अभी ये कैसा है? देखो 60,000 का ऑलरेडी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 60,000 का क्रेडिट था. यहाँ पे 4,40,000 का क्रेडिट मिल गया. टोटल कितना क्रेडिट हुआ? 5 लाख रुपीस. वही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट है 5 लाख आया टोटल. मतलब अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कोई बैलेंस रहा है तो जीरो हो गया. अगर आप ये करते यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे 5 लाख क्रेडिट कर देते तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 5 लाख क्रेडिट हो जाता. दैट विल बी शोइंग द more credit to that equity share allotment. मतलब 5 लाख प्लस 60,000 वो हो जाता 5,60,000 और डेबिट पे जाता अलॉटमेंट में बस 5 लाख. मतलब क्रेडिट बैलेंस हुआ 60,000 का. We doesn't show on these call any balance. We have to nullify that all effects in the upcoming next entries. ड्यू जितना दिखा दो उतना ड्यू का अमाउंट हमें वो जीरो कर देना है, उसका बैलेंस जीरो कर देना है नेक्स्ट एंट्री में. 5 लाख का ऑलरेडी दिखाया था, ड्यू अमाउंट दिखाया था as it is given in the program 5 per share. So we have shown it 5 rupees per share, that is 5 lakh rupees. Already credit was given to allotment 60,000, so need not to show the credit of 5 lakh here. That's why we have shown the balance amount which will be going to this, that is 4,40,000. So what is narration here? Narration is being allotment money received, being allotment money received, allotment money received of the balance due, of the balance due. नेक्स्ट कॉल आता है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि हमारा लास्ट कॉल होगा. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है? मैसेज करो चैट बॉक्स में. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है? यस
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का? यस, 4 रुपीज का। सो फिफ्थ एंट्री इज 4 रुपीज का। 4 इंटू हमारे इशूड शेयर कैपिटल के शेयर्स कितने? दैट इज 4 लाख। ओके, 1 लाख। So 4 into 1 lakh, that is the due amount of first and final call. How much? कितना होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू अमाउंट कितना होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, ड्यू अमाउंट कितना होगा? यस, 4 लाख। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 lakh to equity share capital account 4 lakh to equity share capital account 4 lakh. Okay, equity share capital account 4 lakh. Now that Vinita's situation comes here. विनीता ने बोला कि 200 शेयर्स मैंने परचेज कर लिया, आई रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑफ दैट शेयर्स। फिर से शेयर करता हूं प्रॉब्लम, अगर आपको कैन यू सी हियर दैट विनीता हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स failed to pay first and final call and her share were forfeited. Immediately उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो अगर वो शेयर्स फॉरफिट कर लिए तो मतलब 200 का जो ये कैपिटल है 200 इनटू अभी जो हम रिसीव करने वाले हैं फर्स्ट एंड फाइनल वो पूरा रिसीव करने वाले क्या नहीं, 200 शेयर्स का हमें मिलेगा ही नहीं। शी रिफ्यूज टू पे, मतलब बैंक अकाउंट को जो डेबिट जाने वाला है वो कुछ अमाउंट से कम होगा। कितने अमाउंट से कम होगा? 200 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय हमारा ये जो कॉल है कितने रुपए का है? 4 रुपए, बराबर है। उसके पास कितने शेयर्स है? 200 शेयर्स है। उसने परचेस कितना किया? 200 शेयर्स परचेस किया। 200 शेयर्स का पर शेयर अमाउंट है 4 रुपीस। सो 200 into 4 800 रुपीस उसने भरे नहीं, मतलब टोटल जो अभी मिलने वाला था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का उसमें से 200 रुपीस नहीं मिलने वाले, that we will not receive. So जो 4 lakh है 4 lakh minus 800, that much amount we will receive. Okay, so what is amount we are going to receive here? That 4 lakh minus 200, that is 3,99,800. That is our sixth entry. बैंक अकाउंट में कितना जमा होगा? इतना ही जमा होगा, ठीक है। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ओके वेट 200 टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,99,200. That will be right. कितना मिला है? 3,99,200 इतना ही मिला है। So what is? Yes, correct. Calculation shown correct. Very good. Right now, narration being first and final call, amount received, except except 200 shares at rupees 4 per share, bracket complete. That was second last entry actually. एक entry अभी तक रहा है, एक एंट्री अभी तक का है। अगर आप एंट्रीज ध्यान से देखोगे तो इस एंट्रीज में ये जो 200 का शेयर्स है इसको हम फॉरफिट कर रहे हैं। ओके, पहले तो सिचुएशन समझ लेते हैं कि 200 शेयर्स है विनीता के, उसे हम बाय बाय कर रहे हैं, उसे हम शेयर होल्डर एज अ शेयर होल्डर हमने उसे नहीं रखना है, उसके शेयर्स जब्त कर लेने हैं।
उसके शेयर्स जब्त कर रहे हैं, मतलब उसके शेयर्स की टोटल फेस वैल्यू कितना है एक्चुअली वो समझो। फेस वैल्यू कितना है एट ₹10, दैट इज 2000 रुपीज। आउट ऑफ दैट उसने उसने आज तक कॉल भरे थे, उसने उसने आज तक कॉल भरे थे, एप्लीकेशन मनी भरा था, अलॉटमेंट मनी भरा था, एप्लीकेशन मनी भरा था, अलॉटमेंट मनी भरा था। मतलब कितने रुपीस उसने भरे थे एक्चुअली, कितने रुपीस उसने भरे थे और कितने रुपीस नहीं भरे हैं, ये दो पार्ट होते हैं। उसने 4 पर शेयर नहीं भरा है, दैट इज 200 into 4 800। उसने 200 into the forming part of the face value, that is 4 तो यहाँ पे होगा, तो 6 कहाँ पे रिमेनिंग फेस वैल्यू का पार्ट कितना रहेगा 6 रुपीज। ये बात समझ लो, यहाँ पे प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके समझना। जो एंट्री अभी मैं करने वाला हूं उसके दो पार्ट हमने किए। पहले तो ये हमने डिसाइड किया उसका जो शेयर कैपिटल है उस विजेता था, दैट इज एट द फेस वैल्यू, एट द फेस वैल्यू इज ₹10। तो टोटल अमाउंट बनेगा उसका 2000। उसको पेबल टोटल हमें कितना था 2000 व्हेन शी हैज एलोकेटेड। तो उसने आउट ऑफ दैट 4 रुपीस, मतलब 4 रुपीस पर शेयर नहीं भरा है, ₹4 पर शेयर नहीं भरा है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जहां पे प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं था, जहां पे प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं था। फेस वैल्यू का 4 रुपीस पर पार्ट था जो उसने भरा। तो फेस वैल्यू का जो रिमेनिंग पार्ट है, ध्यान देकर सुनना कि फेस वैल्यू का जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज आउट ऑफ 10 रुपीस 4 रुपीस नहीं भरे, मतलब कितने भरे आज तक, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फेस वैल्यू दैट इज ₹6, दैट इज ₹6। ये ध्यान देकर सुनना, दैट इज ₹6, दैट 1200 which is a forming part of what actually equity share capital. Equity share capital she have paid, actually she have paid, and 800 forming part of share capital she haven't paid। और इस 800 के पेमेंट के रिफ्यूजल की वजह से उसके शेयर्स हमने जब्त कर लिए। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी तो हमें यहाँ पे देखना। तो एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स, दैट टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल का जो अमाउंट है दैट इज 2000, कैपिटल का फेस वैल्यू का अमाउंट, कैपिटल को जब भी अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है वो फेस वैल्यू से होता है। जैसे आपने प्रीमियम के वक्त देखा, प्रीमियम का सेपरेट अकाउंट हमने ओपन किया था और फेस वैल्यू का पार्ट हमने क्रेडिट किया था। जैसे अलॉटमेंट के वक्त क्या था, दो पार्ट कर दिए, एक प्रीमियम को ट्रांसफर कर दिया 3 रुपीस वी हैड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि 3 रुपीस जो थे 3 रुपीस इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड 2 रुपीस इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रीमियम वैल्यू। सो प्रीमियम को हमें एक्सक्लूड करना है, प्रीमियम को हमें वहां पे कंसीडर नहीं करना है। ओके, नाउ वी विल ट्रांसफर दीस बोथ अमाउंट्स, जो मैं अभी के कैलकुलेशन आपको दिखा रहा था। 800 is not paid a part of face value and 6 is a paid part of face value। ये दो पार्ट मैंने किए एक्चुअली, और इनका ट्रांसफर क्रेडिट को कैसे करना है, इसको क्रेडिट कैसे करना है, दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल फॉर्म जो उसने नहीं भरा है दैट इज 800 रुपीस टू इक्विटी या फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बोलेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना प्रॉफिट कर लिया हमने 1200 प्रॉफिट कर लिया, कितना प्रॉफिट कर लिया 1200 प्रॉफिट कर लिया। सो दैट वाज द एंट्री व्हिच वी रिक्वायर्ड इन टुडेस सेशन। कि क्या करना है यहाँ पे, फेस वैल्यू का जिसका भी शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू, उसके दो पार्ट है, उसने कितना फेस वैल्यू का अमाउंट भरा है वो निकालो, उसने कितना अमाउंट फेस वैल्यू का नहीं भरा है वो निकालो। नहीं भरा है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट होगा 800 रुपीस।
एंड जो भरा है उसमें 8% part of share capital, face value of share capital that he has subscribed, he or she, that will be credited to share forfeiture account, that is rupees 1200, जो हमने सेकंड पार्ट में सेकंड सेशन उसके लिए करा। ये वर्किंग नोट आप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, that working note is most important. So that was the final entry. You need to do the total after this. इसका जो more detail explanation है in writing I will do, so you can understand after that. Write it before after the problem only, practical problem के नीचे, इसी problem के नीचे ही लिखना. Okay? Have you written all of you? Just give a message. Yes. बाकी प्राची, Any? फातिमा, फटाफट बोलो. ओके. मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये. इसका और एक प्रॉब्लम ले लूंगा और इसके बारे में और कुछ बताना है वो भी बता दूंगा. आपके डाउट्स होंगे तो वो भी पूछ लेना. ऑफलाइन ऑनलाइन है भी. Tell me offline, I will explain it in the next video so other students can. Last entry. Okay. Last entry में क्या किया है? Equity share capital को डेबिट किया 2000 रुपीज से. ये 2000 रुपीज मैंने कैसे निकाले? जो 200 shares उस विनीता ने परचेस किए थे, that 2000 multiplied by face value is 10. So we got 2000 as a equity share capital. इसको डेबिट करते हैं. क्यों डेबिट डालेंगे समझ लो, क्योंकि ये कैपिटल हम राइट ऑफ करके निकालेंगे. जब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट मिलता है तो कैपिटल बढ़ जाता है, जब कैपिटल अकाउंट को डेबिट मिलता है तो कैपिटल कम हो जाता है. दैट वी आर डूइंग हियर. उसका शेयर फॉरफिट करना मतलब वो कैपिटल निकाल देना है हमें, क्योंकि उसका अमाउंट मिलने वाला नहीं, वो हमने फॉरफिट कर लिया. जस्ट वी आर टेकन दैट अमाउंट एंड ट्रांसफर टू अदर कैपिटल, अदर अकाउंट्स. So which accounts we have transferred that amount? Capital तो write off कर दिया 2000. तो कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करना है? पहले तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ट्रांसफर करो एज अ अनपेड अमाउंट, क्योंकि हमने उसे ड्यू दिखाया था. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को 800 रुपीज ऑलरेडी यहाँ पे हमने उसे ड्यू दिखाया था, वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए. क्योंकि यहाँ पे भी देख लेना इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल आपको कितने से क्रेडिट मिला? 3,99,200. तो कितने का क्रेडिट मिलने का रहेगा? 800 का. सो 4 लाख विल बी मैच विद द डेबिट फिगर. ओके. देन शेयर फॉरफिचर को दूसरा ट्रांसफर करो, क्योंकि फेस वैल्यू में से जो 1200 रुपीस का शेयर कैपिटल था वो हमें राइट ऑफ कर देना है. दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू द शेयर फॉरफिचर अकाउंट. ओके. दैट शेयर्स वी हैव टू फॉरफिट, उसका जब्त कर लेना. शेयर फॉरफिचर मतलब क्या? जब्त. शेयर फॉरफिट करना मतलब क्या? जब्त कर लेना. Okay, so that was the explanation. अगर और explanation चाहिए तो बाद में बताऊंगा. नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है, so that's why I'm in hurry. Okay, let it be. Thank you for listening this lecture. We will see in the another session more critical situations and more we will see. Okay, thank you.